online classes or even the basics class. Yes, due to the new government rules, now the classes are closed. Now the students are going to fall back at their homes. In the terms of education, the system and the scene is again exactly as it was during the lockdown time. It means to say, if we will not reach to the students are again going to fall back. They are again going to forget whatever the hard work that you have made on them. Are you understanding? So, how to reach to the students? How to reach to the students? Here the meaning of reaching is teaching. When they are at their home, and now government has further made this summer situation very tricky and difficult. What are things are there that we need to pay attention for? Answer. Answer, be a good student. आप जो स्टूडेंट्स से आस करते हैं वो खुद बनिए. आप चाहते हैं क्या कि आपके क्लास में बच्चे ऐसे ही बैठे रहें? पहली बात तो यही समझना जरूरी है कि डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी और नॉट? क्या आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कि फिर से लॉकडाउन हो गया है एजुकेशन सिस्टम में, और इसका क्या मतलब है बताइए. टेल अस. Are you understanding the gravity of the situation? Answer. Better. Pushpa, would you try? Be seated and never stand up when I am asking. Okay. In my class, you don't need to stand up. What essence does this lockdown is going to have further? What difficulty, problem or opportunities these all things are going to have? If they do not forgive their knowledge that we have taught them. And one thing is that forgetting, lessons and manners. Okay. One risk is that the students will forget what they have learned and what their manners have been. And for why do you need connectivity? Why do you need connectivity? To bring them back in the mode of study or education, but for their further classes which will be offline. Not for the further classes. Offline, it's easy that it will happen. Either it will not happen on 16th of June, it will happen on 1st of July. It will not postpone further than that.
if there will be no classes, they all will forget the lesson and everyone Yes. will- First thing is that. that will be. And what? A good teacher is just a good student. You are not becoming good student. अभी तक सिर्फ एक दो लोगों का बताता रहा है. पीछे बैठने वाले लोगों को कौन कहेगा? हाँ, आप लोगों वाले से बोलना पड़ेगा. बोलने के लिए जुबान खोलिए, जो दिमाग में है बोलिए तो कम से कम. गलत ही बोलिए. Concentrate towards the study. That's all. Habit of study loss. बच्चों के पढ़ने का जो आदत है, टच विद द बुक, द टच विद द बुक दे विल लूज. जो सीखे हैं वो भूल जाएंगे, वो तो बात अलग ही है. बट पढ़ाई के साथ बुक कॉपी को जो भी थोड़ा छूने का, ओपन करने का, कभी कभी देख लेने का, पढ़ लेने की जो हैबिट है वो भी खो जाएगी. एंड I want to answer yours and yours. आप 4 बाकी की क्लास में. I want to know which student in my class. आपको क्या अकेले बैठे नहीं मिलेगा. मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को बोलने के लिए. सोचिए भाई, दिमाग लगाइए कि अगर लॉकडाउन हो गया तो क्या नुकसान होगा बच्चों को. In English. In English. That's very difficult. Say. So use planning punctuality. All laws. No. आप लोगों का आंसर अभी भी नहीं आया. आप खुद अपने आप में सीखने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना नया चीज सीख रहे हैं, अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं, यही तो बताएगा ना भाई कि आप स्टूडेंट्स को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं. सीखने की कीमत आप नहीं समझेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे. सीधी बात ये है. अगर बोलने की कीमत क्लासरूम में आप खुद नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो बच्चों को क्लासरूम में बोलने के लिए इंस्पायर कैसे करेंगे. The evils from mobiles. बच्चे ऑलरेडी मोबाइल हैबिचुअल हो चुके हैं. इट विल फर्दर अट्रैक्ट देम एंड देयर अटेंशन. बच्चे और ज्यादा मोबाइल के आदी हो जाएंगे. बच्चे मोबाइल में इतना ज्यादा इन्फ्यूज हो जाएंगे, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे कि जुलाई से अगर वो आएंगे तो अगस्त सितंबर तक उनको लगातार काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनको लगातार हैबिट में डेवलपमेंट कराना पड़ेगा और पेरेंट्स को लगातार काउंसलिंग कराना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है, जो कि खुद में बहुत बड़ा काम है.
क्योंकि एज अ पेरेंट बच्चों का वीकनेस, डिफिकल्टी और कहाँ पे वो प्रॉब्लम कर पा रहे हैं देख पाना कठिन होता है। और जब हम स्कूल वाले वैसा बताएंगे तो पेरेंट्स लोगों को और ये लग सकता है कि हम शायद थोड़ा सा अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए बता रहे हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मिस करेंगे अगर लॉकडाउन के टाइम को लास्ट टच नहीं को हम रिगेन नहीं किए तो। व्हाट इज दैट? Staff development like mental, social, emotional. स्टूडेंट्स का Yes. वेरी गुड। ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल। मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट विल ऑल बी लॉस्ट। सब खो जाएगा। बच्चे ऐसा है कि 3 महीना के लिए फिर सबको इंटरेक्ट करके बंद कर दिया। Although it may happen that their social development will still be continued, उनका सोशल डेवलपमेंट हालांकि लगातार होते रहेगा घर में होने के कारण से, लेकिन क्योंकि उनका वो सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनलाइटनमेंट, रैशनैलिटी, मॉडर्निटी के बेसिस पे नहीं रहेगा, तो वे ऐसे सोशल डेवलपमेंट करेंगे जो ऑलरेडी सोसाइटी में बड़ों ने दिया है। सोसाइटी को वो इतिहास के बेसिस पे और आज बड़ों ने जैसा दिया है उसी के बेसिस पे चलाएंगे बड़े होकर आगे चल के, उन्हीं हैबिट्स को समझेंगे। सोसाइटी को कुछ अच्छा देने के लिए, सोसाइटी की बुराइयों को दूर करने के लिए और सोसाइटी को बेहतर बना पाने के लिए वो खुद खड़े नहीं हो पाएंगे। और अक्सर ऐसे लोगों को सोसाइटी जो है बाहर फेंक देता है। तो अगर हमारे बच्चों को हम ये टच नहीं दिए तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा स्कूल ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे पेरेंट्स को ऐसी फैसिलिटी नहीं रखेंगे। दे विल बी ऑल्सो डूइंग द all efforts. Loss of the efforts. Teachers, school, parent, efforts. आप लोगों ने जितना मेहनत किया है सब खो जाएगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हाँ फिर से सब जीरो हो गए, साल भर का मेहनत चला गया, अब क्या करें, कैसे करें। अंडरस्टैंडिंग? अब अगर आपको खुद में फर्क नहीं पड़ता सर, मेरे मतलब नहीं है कि बच्चे जिनको हमको इतना मेहनत से सिखाया था वो फिर से सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, या फिर उनका क्या हो जाएगा। मेरे को अपनी सैलरी मिल गई, इतना पर्याप्त है तो बात अलग है, ये हम कितने रूल हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें अपने फील्ड में नहीं रहना चाहिए कि हम टीचिंग फील्ड के लिए सही आदमी नहीं है। अगर हमें इस चीज की चिंता नहीं सता रही है, इतना मेहनत से बच्चों को जो सिखाया गया था, जो बच्चे सीखे थे, नाउ दे आर गोइंग टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। नाउ ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डिड, द स्कूल डिड, द टीचर डिड, ऑल विल बी डेड। And you are still concerning about only your salary and your facilities, और आपको सिर्फ अपनी मजबूरियों और अपनी फैसिलिटीज दिखाई दे रही हैं, तो सोचने वाली बात है। तो हम शायद सही प्रोफेशन में नहीं रहेंगे। Are you understanding? So first of all, these are all things that is a huge thing. That is huge. The impact of lockdown. The lockdown, educational lockdown is not only, it doesn't mean that it's very bad thing. Okay? ये बहुत बुरी बात है, ऐसी नहीं है. If there is a situation to select between life and education,
Of course, selecting life is the first priority. Around 20% of the all schools, government or private, they are having good facilities. That even the stark June, they could conduct the classes with their AC rooms and coolers facilities. They can provide arrival and departure facilities to the standards. But almost 70% schools, those which are government schools, they are facing extreme heat. Even at 9 a.m. in the morning, they are facing the extreme heat. And almost the remaining 10 to 20% private schools, those who are not up to that standard that they could maintain, they are also facing the same situation. So government is thinking about the majority of the people. Are you understanding? And this is not a rule, because it's regarding about the life of the student or the good education about the student. So this is again creating a kind of social difficulty. This is again creating a kind of social difficulty, that who could afford cutting edge facilities, they will get the premium coaching classes and get good education. But many of our students who couldn't afford that, who could afford only us, हमारे पेरेंट्स जो सिर्फ हमारे जैसे स्टाफ, हमारे जैसे टीचर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? है ना? Are you understanding? I am not talking about your salary. कि चलो अच्छी बात है, पढ़ाना नहीं पढ़ाना तो अलग बात है, कम से कम रोजगार तो बना रहेगा, स्कूल तो आने का मौका मिलेगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं आपको कन्विंस भी नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप छुट्टी लेने के बारे में मत सोचिए, या इस बात के लिए खुश मत होइए कि चलो ठीक है 2 महीने का छुट्टी हो गया, बढ़िया आराम से पढ़ेंगे घर. उस सिचुएशन पर भी आपको सोचना तो पड़ेगा ना, जिसके लिए आप जवाबदेह हैं, जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस चीज के लिए सोचना तो पड़ेगा ना. Because if you will not understand these all things, and again you will go for the online or offline classes, when the students will come back, you will not be serious. Again you will not work on yourself. फिर से अपने ऊपर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, नया तरीका नहीं सीखेंगे, फिर से आपको मतलब नहीं रहेगा चीजों से, आप फिर से हिंदी में बात करेंगे, आप फिर से उस छोटे से लोड को नहीं संभालना चाहेंगे. कोई बच्चा कुछ करते रहेगा ऑनलाइन क्लासेस में, आप उनको अपने तरीके से ही डांटेंगे, आप अपने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, वैसे लैंग्वेज यूज करेंगे जैसा कि स्कूल में क्लासरूम में यूज करते हैं. आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको रूल कर देगा. So first of all, check the classes that you will take. Which are the classes that you will take for the up to class 2? How can we provide them online class? Class 2 तक के नर्सरी के बच्चे को कैसे ऑनलाइन जोड़ रखेंगे? सोचिए, बताइए भैया. दिमाग लगाने आते हैं, टीचर का काम दिमाग लगाने का काम होता है, ठीक है. मैनुअल काम करने का नहीं है, ठीक है. रोजी मंजूरी का काम करने का नहीं है, क्या रोजी करने नहीं आते है ना. मैनुअल वर्क करके चले गए, आपको यहाँ दिमाग लगाने के पैसे मिल गए, कहीं भी जाएंगे तो दिमाग लगाने का पैसा मिलेगा. ये दिमाग जो मैं लगा रहा हूँ, ये आपको, आपकी जिम्मेदारी, आपको लगाना चाहिए था. बताइए, आंसर दीजिए. कैसे पढ़ाएंगे क्लास 2 के बच्चों को, नर्सरी एलकेजी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? Come back and
join them. The question is that बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे उसको? I have taught them in their identity. They know revision is there. Where? That is what I am saying. Do you think that a nursery student can join online class? The parents will The parents will have to sit and parents को join करना पड़ेगा online class. Connectivity with the parents. So you will not be teaching to the student itself, but you will be teaching to the भैया पेरेंट को पढ़ाएंगे. बड़े टीचर्स को हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे, छोटे टीचर्स तो पेरेंट्स को पढ़ाएंगे. क्या बोलेंगे उनको? क्या ऐसा बोलेंगे कि आपका पेरेंट आपकी बात माने? वो तो ऑलरेडी उतना ही ईगो में रहेंगे. ठीक है, ये लड़की मैंने पढ़ाई, समझ रहे? कल की लड़की घूमती रहती थी, बदमाशी करते रहती थी, मैंने पढ़ाई नहीं. उन लोग अपने एटीट्यूड ले रहे हैं. आप अपनी पर्सनालिटी, अपना लैंग्वेज कैसे प्रेजेंट करेंगे तो वो मजबूर हो जाए आपसे पढ़ने के लिए, और उनके लिए आपको समय टीचर नहीं बनता. सोचना पड़ेगा आपको, ये आपका होमवर्क है. फ्रॉम क्लास 3 to above, 8 other classes will come. 9, 10, 11, 12 will come. 3 and above. Okay, you go. 3 and above. Okay. For class 3 and above, there will be online classes. If there will not be online classes, if the students will come to the class, the school for the backup purpose, only selected students will come. Those students will come who are weak and to whom we have promised that we will provide them backup. Only those students will come. Their strength is at maximum around 50 students, combining all the classes. Suppose we take some more students, then there will be 100 students. But still 150 students will be left behind. To make a connectivity to them and to give them the education, you are required to join. You are required to record your videos, your teaching lectures, and provide. How you will do? If you are thinking that school resources provide करेगा, समझ रहे हैं? फिर आप क्या करेंगे? स्कूल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, वो आपको इंग्लिश स्पोकन भी सिखाएगा, वो आपको फैसिलिटीज भी देगा, आपको बताएगा भी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये भी बताएगा. फिर आप क्या करेंगे? भाई आपका रोल कहाँ पे रह गया फिर? How the students will get connected? Medium of connection. Lesson plan. What you are going to plan. How you will take the attendance. How you will give them homework. With what language you will use. How you will verify students' attention, that he or she is paying attention to you. How you will check their copy, homework, classwork, notes. How you will check?
how you will conduct classes test in the online mode. Are you understanding? These are all the things that you need to think about and make a solution for. देखने में ही 11 चीजें लग रही हैं। जब आप वहां मिलेंगे और हर स्टूडेंट का टेंशन देखना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तब कैसे होगा? Habit and mode change. बच्चा ऑनलाइन में ही जुड़ा है, मिनिमाइज करके गेम नहीं खेल रहा है, या मिनिमाइज करके वो लोग अपना के अलग से चैट नहीं कर रहे हैं ग्रुप में. How you will convey your message to them, your photos, images, notes, and how will they convey to you? So अगर ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हर क्लास के ग्रुप में आप नोट्स भेज सकें, इसलिए आपको लेसन प्लान में नोट्स भी बनाना पड़ेगा. आज का बच्चों ये नोट्स है, आप इतना पढ़ेंगे, पढ़ाने के बाद फटाक से उसको ग्रुप में भेज दिए. बोर्ड में है तो बोर्ड से ग्रुप में भेज दिए. अब सोच के देखिए, बोर्ड में लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. It's not a joke. Are you understanding? It's a huge thing.